Well, getting you some latest voices. Rescue operations are underway inside the tunnel. Listen into a rescue worker speaking to someone who's trapped right now. Listen into this exclusive conversation. अच्छा, परेशान मत हो गया, बहुत लोग बात करेंगे बचा रहे आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे? Communication is being made with the laborers who are trapped inside the tunnel right now. This communication is also very important to keep their morale up. They are literally stuck in a tunnel under the debris, with no sunlight, with almost no air. Oxygen is being sent in that particular place through a pipe so that they can breathe properly. There was already a caution that many environmentalists have sounded, saying that states like Uttarakhand and Himachal Pradesh and any kind of infrastructure project being created there needs a lot of thought process. We need to be double cautious when we go ahead and create infrastructure in these regions. Right now, the focus is on ensuring that all the 40 laborers who are trapped inside are rescued safely. We'll also get you more voices. We also spoke to the family member of the worker, who is one of them who's trapped inside the debris right now, inside that tunnel, where this accident really happened. The Chief Minister yesterday visited the spot. He spoke to the rescue teams, the officers who are in charge of the rescue operations, also asked them about how long this will take. The idealistic target right now is that the operation should be successful by today. Let's see. We hope and pray that this happens. Listen in to the family member of one of the laborers who's still trapped inside that debris in that tunnel. We spoke to a family member. Listen in. Who among your family members is stuck inside? No. He is my brother. He is the son of my uncle, Gabbar Singh Negi, or he is serving in the now company. But he is a very honesty and he sacrificed. He is implemented the national flag. Firstly, the कितने देर से आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे उनका बाहर आने का? हाँ, हम the waiting from the 36 hours, and just I pray to the God कि he will save. But I try to his son Akash Negi कि please he permission to go him or he meet to his father. But he tried to, or he is gossiping on the telephone. His papa telling कि just we are quite well, or who is coming to meet me. So I think he is the very sacrificed personal. और ये कहे कि कस्टमर जो वर्कर है वो they will come out, then I will come. Everybody is, but तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इससे संतुष्ट है आप हिंदी में बात कर सकते हैं? नहीं, हमने कह दिया जो रेस्क्यू में है वो सबको दिखाई दे रहा है बाहर में कि क्या चल रहा है। अगर आदमी का जो मुंह है, जो दरवाजा है, जो गेट है, वहाँ पे अपने आप पता लग रहा है जहाँ से एंट्री वेयर फिर बाहर आना है। तो ये तो सबके आंखें देर की भगवान जी ने दो कि क्या व्यवस्था हो रही है बाहर का, कोई क्या वहाँ से जो रास्ता है क्या उनके लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आजकल जबकि टेक्नोलॉजी है और जितने भी लोग हैं वो मिनटों में बाहर आ सकते थे, श्रमदान भी करते थे। हमने कहा नहीं, हम तो यहाँ पे श्रमदान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उसके लिए अभी भी हम बोलते हैं जो हमारा कर्म है। रेस्क्यू वर्कर्स हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं कि कब तक उम्मीद है कि बाहर आ पाएंगे? हाँ, दे आर नॉट टेलिंग द एक्यूरेट, समबडी आर टेलिंग द कि आफ्टर दे विल कम द 12 आवर, समबडी आर टेलिंग द इज टू टुमारो इवनिंग टाइम। जी, मेरे पापा है जिनका नाम गब्बर सिंह नेगी है, वो यहाँ के सुपरवाइजर है। और आज सुबह 8:30 बजे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यही बोला कि हौसला दे रहा हूँ मैं सबको, और घर में ये बोलना कि मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ कंपनी बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रही है। यही बताया कि मैं बस सबका वो कर रहा हूँ, मतलब हौसला अफजाई कर रहे हैं, बढ़ा रहा हूँ। से क्या मेरी बात संतोष जी से हो रही है?
अच्छा, आप संतोष जी के भाई बोल रहे हैं? जी, मैं आपको संतोष जी जो यहाँ पर अभी टनल में फंसे हुए हैं ना, मैं इनके बारे में आपको अपडेट बता दूं। अभी यहाँ पर जो है मशीन जो है वो काम करना शुरू कर देगी आधे घंटे के लगभग में हमारी, और वहां पर जो है पाइप के थ्रू अब जो रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है वो किया जाएगा ह्यूमन पाइप के थ्रू। और अभी जो है अपडेट वहां का ये है कि अभी इनसे जो बात हुई है हर 1 घंटे में है इनसे बात की जा रही है। इनको जो भी आवश्यकता के अनुसार जो है खाना पानी और जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, हाँ जी, खाना पानी जी भिजवाया जा रहा है पाइप के थ्रू इंसर्ट के। हाँ, बात हो रहा है जी, सभी लोग सुरक्षित है वहाँ पे। मैं आपको बता दूं, सभी लोग सुरक्षित हैं। यहाँ हमारा माता जी हैं, हमारा भाभी हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, परेशान हम लोग हैं सर। जी, इसीलिए सर आपको फोन किया जा रहा है, इसीलिए आपको फोन कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी लोग हैं सभी सुरक्षित हैं। सभी से हर 1 घंटे में बात की जा रही है। उनको आवश्यकता के अनुसार जो भी वो अंदर से सामान मांग रहे हैं, भोजन, पानी, दवाइयां, उनको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। At least 40 laborers have been stuck inside this tunnel that you see behind me for the last 55 hours. At this point in time, they are battling the battle of their life, probably the most toughest task in their hand. The unlucky ones were the people who got stuck inside, but there were a few lucky ones who were not present inside this tunnel. But these people that you see behind me are the people who actually work in this tunnel and were trying to make sure that this entire all-weather road is completed on time. We'll try and speak to them and try to get a sense as to how is the work done and what do they expect and when do they expect finally their people, their friends, their colleagues who are stuck inside to finally come out. यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, एक बार क्या पता है आपको उसके बारे में? यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। अच्छा, क्या रिपेयर कर रहे थे? वो टनल का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। बाकी लोग जो काम कर रहा था, जो फंसा हुआ है, वो लोग अंदर में थे। अच्छा, वो लोग आगे का काम कर रहे थे? आगे का काम कर रहे थे। तो आप यहाँ पे काम करते हैं, आप शिफ्ट में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? वो लोग का शिफ्ट हमारा डे शिफ्ट था। अच्छा, वो शिफ्ट में नहीं था, नाइट शिफ्ट में। और ये हादसा हुआ। आप कहाँ से आए? मैं उड़ीसा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा भैया, आप भी उड़ीसा से आए हैं, कैसे हुआ हादसा और क्या वजह थी इसके पीछे? कुछ समझ में आ रहा है कि किस वजह से हुआ? अब लूज एरिया है, पूरा लूज पोजीशन है। हम लोग बहुत कोशिश करके अंदर गए थे, अंदर से सब ठीक है, लेकिन इधर जो 200 मीटर जो भी है कैविटी एरिया है, तो उसको हम लोग छोड़ दिया था कि बाद में करेंगे, उसको छोड़ दिया था। आगे प्रोसेस काम चलता रहा। बाद में इधर लूज पोजीशन में शायद लोड आ गया या वाइब्रेशन का चलते कुछ भी एक ही बार गिर गया, 40 मीटर कुछ भी है गिर गया, तो इसके वजह से नाइट शिफ्ट वाले फंस गए। तो अब क्या उम्मीद है, कब तक ये लोग बाहर आ पाएंगे? ये लोग शाम तक, उम्मीद है शाम तक निकल जाए।